Hello everyone. Now it's time for computer. This subject all of you like to do this. है ना? आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपको कंप्यूटर पर बैठ के काम करना भी अच्छा लगता है, गेम खेलना अच्छा लगता है. तो आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ और जानेंगे. In last period we had started the chapter number 1, how computer works. We had seen that in this chapter, computer follows the IPO cycle. What is IPO cycle? IPO cycle means input, process and output that we had done in the last period. And we had seen IPO cycle also takes place in many activities of our daily lives. We had seen some examples of that we are doing this as a IPO cycle. To make a glass of mango shake, to wash the dirty clothes and to make a drawing, to make ice cubes. We had seen these examples in the last week. Now, so all of you remember that this is the picture that shows the IPO cycle of a computer using these devices. This one is keyboard. With the help of keyboard, we are input the data in the computer. Afterwards, this is the CPU that processes the input, and this is the monitor. It shows us the output. So whatever is there in the computer, we can see on the monitor. Now, the next topic is computer hardware. Computer hardware is a collection of physical parts of a computer that you can touch. So what is hardware? So whatever the parts are there of computer that we can touch, it is called hardware. It includes CPU box, monitor, keyboard and mouse. These are the four main parts of the computer and we can touch these parts. So these parts are called computer hardware. It also includes all the parts inside the CPU box, hard disk drive, motherboard, etc. और ये चार पार्ट के अलावा CPU बॉक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, मदरबोर्ड होता है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसे बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर. Now we will see input device. What is input device? The device through which we enter data and instruction into a computer are called input devices. मतलब ऐसा डिवाइस कि जिससे हम कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हैं उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस. The two most commonly used input devices are the keyboard and the mouse. जो अभी मतलब सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में वो है कीबोर्ड और माउस. ये दो इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं. नाउ वी विल सी कीबोर्ड. A keyboard is the most commonly used input device. It is used to enter data or text into a computer. It has keys similar to those of a typewriter. A keyboard also contains the same extra keys such as the function keys. These are used for various functions. For example, pressing the F1 key will open the help menu in the most programs. So, this is the keyboard. ये कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वो ये है कीबोर्ड. और इससे हम कंप्यूटर में हमें जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन हमें डालनी है वो हम कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करके लिख के हम कंप्यूटर में डालते हैं. और ये जो कीबोर्ड है वो टाइपराइटर जैसा दिखता है. और ये कीबोर्ड में कुछ फंक्शन कीज होती है जो यहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइन में है. वो जो फंक्शन की है उसका कुछ अलग अलग ऑपरेशंस, अलग अलग काम होता है उसका, जो हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे देखते जाएंगे. जैसे कि प्रेस F1 जैसे ये फंक्शन की है उसमें सबसे पहले है F1. तो F1 प्रेस करने से हेल्प मेनू होता है
हम जो भी प्रोग्राम ने हमने खोला है तो उसमें अगर हम F1 खोलेंगे तो उसमें हमें हेल्प मिलती है. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज. Second device is mouse. Mouse is also an input device. A mouse is also an input device. Nowadays, a mouse has 2 buttons and a scroll wheel at the center. The scroll wheel acts as an third button. तो ये जो माउस है सबने देखा है, सबने यूज भी किया है और अभी भी करते हो. उसमें 2 बटन्स हैं और बीच में एक छोटा सा व्हील है जिसे स्क्रोल व्हील बोलते हैं. So this is also an input device. Now second is processing device. What is processing device? A computer changes the input into meaningful information. This is known as processing. The central processing unit of a computer is responsible for the processing the input given by the user. मतलब हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस से जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस करता है, यानी कि उसके ऊपर वो काम करता है. इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स कॉल्ड द सीपीयू बॉक्स और सीपीयू कैबिनेट. ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स थ्रू वायर्स. ये जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. और कंप्यूटर के जो सारे डिवाइसेस है मींस कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, वो सारे डिवाइसेस है वो वायर के थ्रू ये सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं. नाउ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू. द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 मेन पार्ट्स. कंट्रोल यूनिट सीयू. इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जो वर्क करते हैं उसका कंट्रोल कौन करता है? सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट. सेकेंड, मेमोरी यूनिट. इट स्टोर्स ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड. इट देन पासिस दिस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द एएलयू और सीयू. ये जो मेमोरी यूनिट है वो हम जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डालते हैं तो उसमें प्रोसेस होने के बाद वो सारा मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ऑल कैलकुलेशंस इन अ कंप्यूटर आर डन बाय ALU. इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. It also performs logical operations such as greater than, less than and so on. And one more unit is there in the CPU, that is ALU, arithmetic logic unit. इसमें arithmetic के related सारे operations जैसे कि addition, subtraction, multiplication, division, वो सारे operations उसमें होते हैं. और या तो logical operation यानी कि less than, greater than, कि जिसका आंसर yes और no जैसे होता है, तो वो सारे फंक्शंस, सारे ऑपरेशन होते हैं वो ALU में यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है. एंड नाउ द थर्ड थिंग, दैट इज आउटपुट डिवाइस. द डिवाइसेस थ्रू विच वी गेट द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. द 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर द मॉनिटर एंड प्रिंटर. Speakers are also output devices. Now output devices means कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है वो हमें जो स्क्रीन पे दिखाता है वो है मॉनिटर. तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है. उसके साथ हम जो भी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है वो अगर किसी पेपर पे लेते हैं तो वो हम प्रिंटर से लेते हैं, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. और उसके साथ साथ हम कंप्यूटर में जो भी है अगर हम वो सुनते हैं तो वो किससे सुनते हैं? स्पीकर से. तो स्पीकर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस. नाउ वी विल सी द मॉनिटर. अ मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. उसका शॉर्ट फॉर्म है VDU. इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. You can see both text and picture on it. The output that we see on a monitor is called soft copy. मॉनिटर में हम कंप्यूटर में जो भी है वो सारी इंफॉर्मेशन मॉनिटर में देख सकते हैं और हम जो भी मॉनिटर में देखते हैं उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी.
Second, printer. A printer is used to copy the output displays on the monitor on a sheet of paper. The printed copy that we get from the printer is called hard copy. और जैसे कि हमें मॉनिटर पे कंप्यूटर का जो भी डेटा है वो दिखता है, उसी तरह प्रिंटर की हेल्प से हमें जो स्क्रीन पे दिखता है वो हम पेपर पे ले सकते हैं. तो वो भी आउटपुट हुआ. और वो जो प्रिंटेड कॉपी हमारे हाथ में होती है, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्स के पेपर और ये जो वर्कशीट वगैरह जो भी बनती है, तो वो है कंप्यूटर का आउटपुट. तो वो जो कॉपी आपके हाथ में होती है उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी, और हम जो मॉनिटर में देखते हैं उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी. एंड द लास्ट वन इज स्पीकर्स. स्पीकर्स आर यूज्ड टू प्ले म्यूजिक एंड साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर. आप सबको पता है कि स्पीकर का यूज सुनने के लिए होता है. तो जो कंप्यूटर में जो भी म्यूजिक है तो आप उसको अगर सुनते हैं तो स्पीकर से सुन सकते हैं. तो स्पीकर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस. So now we had seen about input devices, processing unit and output devices. These are the parts of computer. Now we have to say how many parts are there. So we will say there are 3 parts of computer. First one is input device, second one is processing unit, and third one is output device. Like this you have to remember the computer hardware. The topic that we had covered is computer hardware. Now we will do this much only, because we have to remember small things at a time. हम थोड़ी चीज़ें याद करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए. Okay, so you read these pages, computer hardware. That topic is in the book that you read from the book and try to remember this. Okay, thank you and have a nice day.